Hi everyone. I can see a couple of people joining already. I'll wait for a few more minutes for a couple of more people to join. It'll be really nice if you can kindly tell me if my voice and my video and everything is audible to you guys properly. It'll be of great help. If the sound is clear to you, if the video is fine, you need to make some adjustments or something like that, you can please let me know in the comments. So I welcome all of you and whoever is joining and people who will be joining. And okay, I can see 7 or 8 people have already joined. Yeah. Okay, guys. So Namaskar. I'm Soumitra Thakur and I welcome you all for this interactive live session that Pink Lotus Academia, an institute and academia based out of New Delhi, India, which is catering the field of art and culture to the people of not just India but the entire world. So this is an initiative that we have taken up to have to speak about Lay rhythm and to know how different genres of music, not just tabla players but others also, as in for sitar players, for instrumentalists, for vocalists, for dancers, how they see Laya in their art forms and how important it is, and the various aspects related to that. So we will be talking to a few people. We already had one session a couple of days back with the brilliant Sangeeta Chatterjee ji, who's an extraordinary Kathak dancer of India. And in the coming sessions we will be having Mehtab Ali Niazi on the sitar. We will be having Anirudh Verma, who's an amazing pianist and a composer himself, the brilliant Dakshina Vaidyanathan, who's a very well-known Bharatanatyam dancer, and then we will have the brilliant Yashwant Vaishnav on the 19th. So you can follow the page, you can follow Pink Lotus Academia's Instagram handle to know more about the same, and you can join and get to know how these brilliant artists have seen, or they have tried to incorporate Laya and rhythm in their varied art forms. So in this pursuit today, I'm very happy and extremely excited myself that I'm going to learn so much from today's session. And I'm very happy to tell you that today I'm going to host one of the most prolific and versatile musicians of our generation, Sri Ujjwal Nagarji. He is a vocalist of very high repute. And I think it's like I need to tell a few words about him before I start the live session today, because for the benefit and for the sake of the audience, though I am personally very close to him and I refer to him as my elder brother, my bhaiya. So if in case I say this word couple of times during the live, so please excuse me for that. And so for Ujjwal Nagar, he is a vocalist who was born in a family of musicians and dancers. So he's the son of legendary Kathak dancer of our country, Guru Urmila Nagarji. And so you can understand that he got music in his family itself. So the first lessons begin from the family itself. Later on, he learned from Ustad Bashir Ahmad Khan Sahab of Sikar. And presently he is under the guidance of Pandit Shriram Umdekar and Pandit Somnath Madhurji. So apart from vocal music, Ujjwal Nagar has also learnt tabla from his elder brother Vishal Nagarji, who himself is an established artist and he stays in the US. Ujjwal Nagar has already completed his PhD in music and he has performed all throughout the world. He has done a whole lot of collaborative works, and I think I don't need to put more words into what he has already achieved. And you can just go search him on the internet, follow him on his social media, and you can get to know so much about him. And he's such a prolific musician, vocalist and human being, very down to earth human being. So with all your due permission, I would like to invite Ujjwal Nagar. I'm just sending him a request and we'll wait for him to join. I'm really excited for today's session. Hi, Soumitra. Hi.
Hi, how are you? I'm good. I'm good, yaar. How are you? I'm good. I'm good. So happy to have you here. Thank you so much for accepting my Hey, request. same here. Thank you It's a so pleasure much. So to kind. you know, be part of this initiative. Thank you. I'll just ask a couple of the friends who have already joined. Is the network and the sound and everything is fine from both our ends? If you can just give us a thumbs up on that before we start our discussion. Yeah, I People can I from the can I audience, can hear you nicely. मैं right? एक्चुअली मैं बस ये देख रहा हूँ कि बीच में शुरू में थोड़ा सा अटक रहा था. अभी ठीक है मेरे ख्याल से. I think अभी ठीक है. हाँ, it's good now. Great, great. हाँ, Thank you so much भैया. just आपको मैं give me a कैसे second. धन्यवाद दूँ? अरे प्लीज Sure, ऑफ कोर्स. sure, Just give me a sure, second. Can you sure. give me a second? I'll just मैं पंखा थोड़ा सा हल्का कर दूँ. एक सेकंड है. पक्का पक्का. No problem. हाँ. Yeah, Shamit. Oh, great. What's up? Great, great. Even the picture quality became a little better. Oh, चलो होपफुली नेटवर्क ठीक चल रहा है हमारा. Hopefully, yeah. So, Yeah. thank you again, भैया. Okay, there's a No, little please. problem in the network. Oh, नेटवर्क में just कहीं भी इशू आ रहा है, so उसके लिए हम पहले ही थोड़ा सा माफी मांग लेते हैं शुरू में ही. Okay, नहीं, I tell me think. now, is this better from my end? Uh, yeah, I can see you properly. कभी कभार बीच में वो रुक रहा है, वो गोल गोल हो रहा है. Okay. I think now it's better. Okay, let's see how it goes. In case there's No a, I problem. think this is nice. Now this is much better. Yeah. Okay, Okay. perfect. So, as you all know, so we will be using both Hindi and English as a medium. I think हाँ, people from all over the world are viewing it, so it will be easier जरूर. for both the audience, you know. नहीं, So, definitely. आज आज जो हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो एक्चुअली Hmm. थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा because हम लोग people do speak about their journey, about how they have learned Yeah, music and everything in detail. We have heard a lot about that, and it's good we get to hear everything. yeah. But आज का जो हमारा टॉपिक है, it's little more technical and it's more towards the rhythm part or the ताल पक्ष, जो हम लोग बोलते हैं ताल पक्ष और सुर पक्ष की बात करते हैं हम लोग हिंदुस्तानी Hmm. क्लासिकल म्यूजिक. हाँ जी, बिल्कुल. तो ताल पक्ष के बारे में आज हम थोड़ा सा उज्जवल भैया से जानेंगे what how he sees it and how he has learned it and how he applies it in his art form. So भैया Definitely. again, thank you again and let's start it. So Please, thank you. so your first step towards Hmm. leh, आपका जो interest आया बचपन में, because we Hmm. all know you are not just vocalist who जो कि सुर के बारे में सोचते हैं, बट ताल पक्ष भी के बारे में भी आप सोचते हैं, आप इसके बारे में काम करते हैं. तो आपका पहला इंटरेस्ट जो बचपन में आया वो कैसे आया या कहाँ से आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्लीज उसके बारे में Uh, बताइए. ओके, सबसे पहले तो तुमने यार मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है. ऑनेस्टली ईमानदारी से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. मैं मतलब आर्टिस्ट जब मैं इमेजिन करता हूँ अपने आप को कि अच्छा कि आर्टिस्ट जिनको थिंक ऑफ देम एज एन आर्टिस्ट, सो खुद को कुछ अपने बारे में कोई एडजेक्टिव यूज करना बड़ा अजीब सा लगता है. सो just like you and everybody who are so talented and many of them have joined in, I'm a student of Indian classical music and वो inquisitiveness रहती है. So thank you all for joining and thank you for making me part of this wonderful initiative first of all. As far as my journey is concerned, yes, I was born into a musical family. मेरी मम्मी जो हैं वो बहुत रिस्पेक्टेड और जितना मैं उनको जान पाया हूँ बहुत ही नॉलेजेबल वोकलिस्ट भी हैं और प्रोफेशनली तो ऑफ कोर्स शी इज़ अ कथक सीनियर गुरु एंड सीनियर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट. जो मेरा एक्सपीरियंस रहा शुरू में बचपन का कि मम्मी ने आई थिंक मुझे इनकरेज किया गाना सीखने के लिए. आई थिंक शी वॉज द वन शी डिस्कवर्ड. आई डोंट थिंक कि मैं खुद से सोचता, क्योंकि ऑफ कोर्स आप घर में होते हैं बचपन से तो आप सुन रहे होते हैं गाना बजाना घर में हो रहा है. माई ब्रदर वॉज प्रैक्टिसिंग. माई ब्रदर इज अ वंडरफुल तबला प्लेयर. उन्हीं से मैंने तबला सीखा.
सो ऑफ कोर्स वो तो एक माहौल होता ही है, तो आपको सुनने को मिलता है मेरे ब्रदर रियाज कर रहे हैं फ्रॉम द एज ऑफ 6 and 7 यू आर लिसनिंग कुछ भजन वगैरह। मेरी मम्मी ने एक सरस्वती वंदना मुझे याद कराई थी व्हेन आई वाज 8 or 9, but nothing particularly that I was training myself to become a classical vocalist. So कान में कुछ ना कुछ पड़ रहा था, there was something. मेरी मम्मी के रिहर्सल्स हो रहे हैं तो उनके रियाज को हम लोग देखते थे कि वो मतलब घंटों घंटों शी इज थिंकिंग अबाउट इट। एंड पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो पुराने आर्टिस्ट हैं, जो आपके गुरु होंगे और मेरे गुरु हैं, मेरी मम्मी हैं, वो जैसे 24 घंटे कुछ उनका कुछ जैसे म्यूजिक का ना एक अलग जुनून है, जैसे उनका वर्ल्ड है म्यूजिक। आई थिंक आजकल के वर्ल्ड में हम सबों के पास बहुत साधन आ गए हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, बट पहले के आर्टिस्ट को मैं देखता हूँ जैसे अपने आप के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है उनके, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई लोगों के सामने कब परफॉर्मेंस होगी नहीं होगी, वो आपस में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और कभी किसी बोल पे सोचते रहेंगे, कभी किसी तिहाई पे कोई बंदिश अच्छी लग रही है कि यार ये ठुमरी है या ये कॉम्पोजिशन है, इसको भाव में हम लोग दिखाएं या इसको इस प्रकार डिपिक्ट किया जा सकता है अभिनय से। और तो वो जर्नी जो है, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ मैंने मेरी मम्मी में बहुत देखी है। और तब शायद मुझे इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, बट धीरे धीरे फिर मेरी मम्मी ने मुझे जब व्हेन आई वाज 11 years old आई थिंक, उन्होंने फॉर्मली फिर मुझे कहा कि नहीं यार तुम बैठो और एक कॉम्पोजिशन सीखो। सो मैं स्कूल से आया ही था एंड शी टुक द हारमोनियम एंड स्टार्टेड सिंगिंग। तो उन्होंने मुझे तोड़ी में एक तराना शुरू कराया था एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड और ताल के साथ जैसे जो हमारा टॉपिक है आज का, मेरा संबंध जो है ऑफ कोर्स, गाना आप शुरू करते हैं तो आपका ऑफ कोर्स एक लय से ताल से आपका रिश्ता जुड़ जाता है, बट आई थिंक वो उनकी फोरसाइट थी कि मेरी मम्मी नहीं है, एक्चुअली मेरे ब्रदर रियाज कर रहे थे तो मैं कुछ उनके ना कुछ बोल जो है वो इमिटेट कर रहा था जस्ट फॉर फन, बैठा हुआ हूँ, सो ही इज प्लेइंग समथिंग इन प्रैक्टिस, तो वो कुछ बजा रहे हैं तो मुझे नहीं पता वो तिरकिट बज रहा है, मैं कुछ इमिटेट कर रहा हूँ, धर उधर, तो वो कुछ बजा देंगे, फिर मैं करूँगा तो फिर जस्ट हैविंग फन है। माय ब्रदर वाज हैविंग फन विद मी। हमारे घर में एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट आते थे, उस्ताद रफ़ी खान साहब, रफ़ी भारती जी, वो ही इज नो मोर यार, बट इतने बेहतरीन इंसान। एंड ही यूज्ड टू जस्ट कम एंड मेरे ब्रदर को रियाज कराते थे। मतलब मेरी मम्मी का मतलब उनका एक ये था कि नहीं घर में कोई, जैसे शायद अब शायद कम है ऐसा, लेकिन म्यूजिशियंस के घर में कोई ना कोई बंधे म्यूजिशियंस होते थे, आर्टिस्ट जो अभी भी कलकत्ता में महाराष्ट्र में है, कि वो हर हफ्ते हर 2-3 दिन में उन्होंने आना ही है, 2-3 घंटे पार्ट ऑफ फैमिली। सो ही वाज पार्ट ऑफ आवर फैमिली। रफ़ी खान भारती, ही वाज फ्रॉम भोपाल, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे इंसान। तो वो हारमोनियम बजाते थे और तबले का भी उनको बहुत नॉलेज थी, उन्होंने तबला सीखा था, हबीबुद्दीन खान साहब वगैरह से भी सीखा था उन्होंने, बंदे भी उनको याद थी। तो वो रियाज करा रहे हैं तो बड़ा फेमिलियर सा माहौल था, और मेरे ब्रदर बजा रहे तो मैं कुछ इमिटेट करने लगा तो वो बात आई गई होगी, तो उन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेट सा बजा, वो मैं नहीं कर पाया तो मैं चुप हो गया, और देन वी स्टार्टेड लाफिंग एंड ऑल। तो मेरी मम्मी का ध्यान शायद उसकी तरफ गया होगा, शायद इंसिडेंट की तरफ। सो उन्होंने फिर शायद नेक्स्ट डे या कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा नहीं इसको तबला शुरू कराओ, इसको तबला भी शुरू कराना चाहिए। सो मेरे ब्रदर ने मेरा हाथ रखवा दिया एंड कुछ टाइम के लिए जैसा मैं तब सुनता था, और प्रॉब्ली आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द मेन टॉपिक, बट भूमिका ये है कि मेरे ब्रदर तबले के सिलसिले में मुझे याद है कि मेरे ब्रदर का ऐसा था कि मैंने सुना था, लतीफ़ अहमद खान साहब से मेरे ब्रदर की तालीम हुई, तो ऐसा मैंने सुना था कि उनका शुरू में सिर्फ हाथ रखवाया उन्होंने, एक दो महीने रोज जाते थे 1 घंटे के लिए और सिर्फ हाथ रखवाते थे कि हाथ रख के बैठ जाओ तबले पे, कोई बोल नहीं बजाना, कुछ नहीं बजाना। सो माय ब्रदर आल्सो सेड किया तू हाथ रख बस। अच्छा यार मैं भैया हाथ रखूं, ओके, तो हाथ रख के बैठ गए कि पोजीशन क्या होनी चाहिए। सो इस तरह कुछ मेरा शुरू हुआ। मेरे ब्रदर भैया ने मुझे, आई एम ग्रेटफुल टू हिम, कि कई बार फैमिली में क्या होता है कि सीखना मुश्किल होता है कि ना कि यार टाइम कैसे मिले, बट आई थिंक मेरे ब्रदर ने मुझ में इंटरेस्ट लिया। एंड सबसे बड़ी बात, मेरे तबले के एक और गुरु यार रफ़ी खान साहब, रफ़ी भारती जी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। So because my brother started traveling when I was 16,
मतलब सॉरी व्हेन आई वाज आई थिंक 10 or 11 बिकॉज हाँ मुझे यस एग्जैक्टली तो उस टाइम पे यूज्ड टू ट्रैवल 3-4 months अब्रॉड एंड परफॉर्मेंसेज एंड यू नो उनका वर्कशॉप्स भी होते थे एंड यूज्ड टू टीच। तो उस टाइम पे रफ़ी खान साहब थे घर में, तो वो आते थे, वो तब भी आते थे, तो मुझे थोड़ा गाने का रियाज करा रहे, नहीं सर कि नहीं तेरा तबला ठीक होना चाहिए। तो मैंने अच्छा मैंने कहा साहब आप बताएं। तो वो बड़े प्यार से मुझे टुकड़े सिखाना और मेरा इंटरेस्ट जगाना कि इंटरेस्ट बच्चों का तबले में कैसे इंटरेस्ट आए कि भाई मुझे तो मैं वो लहरा बजा रहे हैं, मैं कोई कायदा बजा रहा हूँ, फिर वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े मुझे बताने लगे कि धाते 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 धा धाते धा धाते धा, ऐसे करके कुछ क्या छोटे बात छोटे टुकड़े थे। तागे तेरना करना धरे धागे ना धागे ना धागे धा, ऐसे कुछ करके छोटी छोटी है। तिहाई थी। उससे शुरू हुआ, फिर कायदे कुछ उनके फरुखाबाद, क्योंकि उनका फरुखाबाद ज़्यादा था उनका जो घराने की उनकी जो बंदिशें थी, तो उन्होंने इस तरह एक बड़ा फेमिलियर सा एटमॉस्फेयर था उनके साथ। मैं बड़ा ऑनेस्टली मैं बड़ा मिस करता हूँ उनको, और मेरे बड़े भाई खुद हम लोग बहुत मिस करते हैं उनको। उनको अच्छा है कि इस बहाने उनको याद कर रहा हूँ मैं। सो इस तरह मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो फिर मुझे याद है कि मेरे ब्रदर और मेरी मम्मी वो आई थिंक आने वाले थे, या कुछ ऐसा हुआ था कि कमिंग। सो एक सवा साल हुआ था कुछ, मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहा था तबले में, ज़्यादा नहीं ले रहा था। तो कि थोड़ा होता है ना आप बजा रहे हो लेकिन इंटरेस्ट हाथ नहीं निकला है अभी। सो तो गाने की तरफ भी ऑफ कोर्स ध्यान था ही। तो फिर मेरे जो बड़े भाई आई थिंक कुछ कायदे वायदे मुझे याद हो गए थे खान साहब से भी, तो फिर उन्होंने कहा कि यार वो आने वाले स्टेट से विशाल कहेगा कि यार इसका तो कुछ आपने चलाया नहीं, क्या सिखा रहे हो आप, क्या हाथ वाथ इसका चल नहीं रहा है कुछ। तो उन्होंने मुझ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि नहीं यार तो एक ही कायदे को बजा, और ये टुकड़ा पढ़, ये टुकड़ा पढ़, ये टुकड़ा पढ़। तो इस तरह मेरा इंटरेस्ट आने लग गया। तो वहां टुकड़ा से पड़ कुछ मतलब वहां से पढ़ंत पढ़ंत का भी आपका जो पढ़ंत सिलसिला का था रही वहां से। था। और फिर मेरे बड़े भाई जो है ना, मेरी मम्मी जो है, उनकी ना पढ़ंत बड़ी साफ है यार, बड़ा बिल्कुल। इमोशन है उनके। मेरी मम्मी के भी जो पढ़ंत है मतलब उनका, मतलब जो मुझे समझ में आया जो कि बड़ा एक्सप्रेशन देने की कोशिश करती है वो बहुत। कोई भी तिहाई हम लोग पढ़ते ना, कुछ भी पढ़ेंगे ताकि 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 ताकि, ऐसे मत पढ़ो यार, पत्थर मार रहे हो, ताकि 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 ताकि। बहुत अच्छा लगता है कि वरना बड़े लोग कुछ कह देते हैं ना कि यार कैसे बोल रहे हो यार, तो दिमाग में रह जाता है अच्छा यार ओ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सो इस प्रकार मेरा जो लय के साथ आप कह लीजिए रिदम के साथ मेरा ना रिलेशनशिप थोड़ा। और उस टाइम पे एक्चुअली क्या है कि वोकल के साथ क्या होता है कि आपकी आवाज़ चेंज हो रही होती है तब 13-14। तो मेरी मम्मी ने मुझे जब सिखाना शुरू किया तो बशीर अहमद खान साहब जो मेरे पहले मेरे उस्ताद यार, उन्होंने मुझे अपने उसमें ले लिया सानिध्य में। और मेरी मम्मी ने कहा कि आप इन्हें सिखाइए, कि मेरे बशीर खान साहब भी आते थे घर में रहते थे। जब मैं मतलब सीखना शुरू भी नहीं किया था तो मेरी मम्मी के वो पहले से ही आप एक तरीके से गुरु कह लीजिए और एक मेंटोर भी कह लीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत शौक था ख्याल गायकी का। और वो रेडियो से भी गाती थी। और मुझे उनका अलंकार भी है गंधर्व महाविद्यालय में, पुराने भैया जी के टाइम का। तो उनको गाने से बहुत प्यार है। तो उनका तो बशीर खान साहब तो वो बहुत समय से जानती थी और उनके भी वो गुरु रहे हैं। तो उन्होंने फिर मुझे अपने उसमें ले लिया और उन्होंने फिर मुझे सिखाना शुरू किया। तालीम जैसे होती है रागदारी, वो घर में रह रहे हैं 15 दिन। तो वो तो एक ऑफ कोर्स आप जब बंदिशें सीखते हैं तो आप ताल सिस्टम से अवगत होते हैं, 3 ताल क्या है, 1 ताल क्या है। लेकिन मुझे वहां से मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा सॉर्ट So ऑफ I राग। think I think that even brings to my next question, which is how important or what do you think अगर कोई vocalist है, ऐसा लोग कहते हैं कि vocalist है तो उसको सुर का पक्ष ज्यादा इम्पोर्टेंट है या जो भी है। आपके हिसाब से एक वोकलिस्ट हो या एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, जैसे मैं सितार बजाता हूँ या कोई सितार बजाते हैं या कोई भी हो डांसर हो, तो उस इंसान के लिए हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू लर्न तबला और टू लर्न रिदम
before they start learning their respective art forms, which I have heard a lot and I have myself done it. So Yeah. मैं वो चीज समझता हूँ. So I would want you to please elaborate a little more on that as well. कि एक तबला सीखना कितना important है before you start any other art form. आपके हिसाब से क्या है? See, from my personal experience, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प किया है. एंड थैंक्स टू माय एल्डर ब्रदर, यार, मेरे विशाल भाई, जिन्होंने मैं लकी रहा क्योंकि वो तबला प्लेयर थे. तो अब वो कायदों का रियाज कर रहे हैं, तो उनका अगर 3-4 घंटे रियाज चल रहा है, तो 2-3 घंटे के बाद कई टाइम ऐसा हुआ, मुझे याद है, देर वॉज अ टाइम 2-3 महीने का, जब वो मुझे अक्सर बिठा लेते थे. फर्स्ट हाफ रियाज होता था उनका, एंड देन सेकेंड हाफ में वो झपताल बजा रहे हैं, तो झपताल के कायदे कहेंगे, आजा यार उज्जवल, आजा बैठ जाए यहाँ पर. और फिर तबला मैं लेके बैठ जाऊंगा, फिर वो कायदा बजा रहे हैं, और थैंकफुली हाथ वाथ थोड़ा चलने लग गया था मेरा, तो वो एक कायदा बजा रहे हैं, फिर कहेंगे ये पलटा बजा. तो ही यूज्ड टू, उन्होंने मुझे एक तरीके से बड़ा मोटिवेट किया टू लाइक कनेक्ट विद, कि आप कायदे को कैसे खोलोगे, आप पेशकार को कैसे खोल रहे हैं, अप्रिशिएट कर सकूं. चाहे मैं करूं नहीं करूं प्रोफेशनल, लेकिन एटलीस्ट मुझे इतना समझ में आ जाए कि कल को अगर जरूरत पड़े कहाँ म्यूजिक में, गायकी में, तबले में, तो मुझे थोड़ा अंदाज रहे. तब इतना सोचा नहीं था. तब तो ऐसा होता है ना, एक्साइटमेंट होता है कि अरे भैया का फर्स्ट हाफ रियाज हो गया, अब हो सकता है मुझे बुलाएंगे, तो मैं आसपास घूम रहा हूँ तो बुला लेंगे. तो वो जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ. इसका मुझे इसके एग्जांपल्स, मुझे अगर हम देखें, जो इतने बड़े लेजेंड्स हुए हैं, आप पंडित राजेंद्र साजन मिश्रा, यार, उनको क्या, मतलब राजेंद्र मिश्रा जी, क्या उनकी लय, और क्या, तो अगर आप उन्हीं को याद करें, तो उनकी जो पढ़ंत है, जो ओकेजनली हम लोगों को सुनने के लिए मिलती है, उससे साफ पता चलता था उन्होंने तबला कितना सीखा है, उन्होंने कितना सोचा है लय पे. शिव कुमार शर्मा जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, अगेन, उन्होंने बहुत अच्छा तबला बजाया है. पंडित जसराज जी, उनका कितना अच्छा आता है. यू कैन फाइंड क्लिप्स जहाँ पे, आई थिंक लेटर एजेस में भी उनके कुछ तबले की क्लिप्स हैं जो उन्होंने ऐसे फॉर फन वो आई थिंक बजा रहे हैं, आई थिंक विजय घाटे जी के साथ. सो मैं जब सोचता हूँ, उस्ताद राशिद खान साहब, उनका तबले में कितना अच्छा हाथ है. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जनरली हमारी जो हेरिटेज है और जो हमारा ट्रेडिशन है, जिसमें उस्तादों को अगर हम देखें, जो अभी करंटली भी जो पॉपुलर हैं, तो हम देखें तो ऑफ कोर्स मतलब प्रूवन फैक्ट है कि तबला या कोई परकशन इंस्ट्रूमेंट आपको आना चाहिए. इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, गाने का काम है तो सुर को तो यार छोड़ नहीं सकते, सुर तो ईश्वर है. लेकिन मुझे लगता है कि कई बार है कि लय की समझ भी हो तो आपको हेल्प करता है यार, क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग कई बार ऐसा होता है कि गला आपका थोड़ा गड़बड़ है या कुछ है, सुर कई बार आप चाहते भी हो. जैसे अभी तक मैं पर्सनली बताऊं तो मेरी तो जर्नी यही है कि अभी एज अ स्टूडेंट की मैं अपने दोस्तों से बात भी करता हूँ, तो यही कहता हूँ कि यार, सुर जो है ना, सुर तो एक ऐसी जर्नी है कि आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो. जिस दिन लग जाता है तो उस दिन लगता है यार क्या बात है, मजा आता है. और कई बार ऐसा होता है कि लग ही नहीं रहा होता और आपको लगता है कि यार ये क्यों नहीं लग रहा. उसका कोई रीजन नहीं है, कई बार मौसम है, कई बार मूड है, लेकिन लय ऐसी चीज है कि आपको अटेंटिव रखती है, थोड़ा आपको सेंटर में रखती है. कई बार सच इम्पोर्टेंट पॉइंट, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ एक बार. सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि लय आपको सेंटर में रखता है, बैलेंस रखता है. So that's I think वो तो यूनिवर्सल है, बीट तबला, बीट इंस्ट्रूमेंट, बीट वोकल, बीट डांसर. So I think बिल्कुल important point that you have mentioned कि वो बैलेंस रखता है आपको, चाहे कितना भी सुरीले आपको. हाँ, जैसे तबले का मुझे ये भी लगता है कि जैसे अगर आप और कुछ नहीं तो जैसे अगर कोई ताल रख रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि गाने में जनरली क्या होता है कि शायद आप आगे क्वेश्चन से पूछेंगे, मैं तो जनरली बातचीत ही करने लग गया हूँ लिटरली. लेकिन मुझे लगता है कि जैसे गाने में ऐसा नहीं होगा कि आप पर्टिकुलरली इम्प्रोवाइजेशन सारी रेडी में ही कर रहे हैं या पौने दो में कर रहे हैं या सवाई में कर रहे हैं. वो मूड और आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है बिटवीन लिरिक्स एंड इमोशंस एंड रागदारी एंड तैयारी. सो उसमें लयकारी का सबसे ज्यादा या ताल का जो महत्व है, जेन्युइनली ऑनेस्टली प्योर ताल का,
कि आपको 3 ताल कैसे फील हो रही है, आपको 1 ताल कैसे फील हो रही है। आप चाहे कायदे की कायदे पेशकार, वो तो ऑफ कोर्स एक तबले का अपना एक रेpertoire है, लेकिन आपको वो ताल सुनने में कैसी फील हो रही है। आपको आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप भी इम्प्रोवाइज करते हैं, समझ या जो भी वोकलिस्ट और वोकल स्टूडेंट्स जो मेरे दोस्त हैं जितने भी, चाहे अविनाश हो, रंधाना हो, शुभम हो, सब मैं देखता हूँ कि हम लोग सभी कोई ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि यार एक बीट चलेगी, 2 बीट चलेगी, 3 बीट चलेगी, 4 बीट चलेगी। आप भी जब बजा रहे हो शामिल, मैं तुम्हारा भी इतना अच्छा सुना है कि हम लोग सभी ये सोचते हैं कि गिनती में नहीं सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यार एक ग्रूव चल रहा है ना, छंद के बारे में, छंद एक चल सोचते रहा हैं। है कि आप उस उतार चढ़ाव को महसूस कर रहे हैं ना। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा चक दिन दिन धा चक दिन दा धा चक दिन दा चक दिन दा दिन दा किट धा, है ना। क्या बात। लेकिन इशू ये है कि जब कोई सिखाता है तो हम जब भी 3 ताल सीखते हैं तो हम इस तरह सीखते हैं कि धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। यार 16 बीट्स है ना। जब हम लिखते भी हैं, थ्योरेटिकली भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम गा रहे होते हैं, जबकि तबला फिर बजा रहा होता है, तो वो इस तरह नहीं बजाता है ना, वो नहीं बजाता है। तो अब आप उसको कैसे आप एक्सपीरियंस करोगे। आप उसको तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि यार या तो कोई ठेका बजाने वाले आपको बचपन से कान में पड़ रहा हो कि आपको उतार चढ़ाव बचपन से महसूस हो रहा है ना। कि हमारा फर्क जो है मेरे ख्याल से इंडियन म्यूजिक में, वेस्टर्न म्यूजिक में, जो मुझे मेजरली फर्क लगता है कि आपका कोई 4/4 का खंड नहीं है। ऑफ कोर्स आपका 4/4 का खंड है, लेकिन वो साइक्लिकल इन नेचर है ना, जो हमारी ताल सिस्टम है। तो अब साइक्लिकल इन नेचर का मतलब आई थिंक लॉजिकली स्पीकिंग वो एक ग्रूव की तरह फील हो रहा है, क्योंकि वेस्टर्न में ग्रूव है ना। अब वो जैसे आप 4/4 के ग्रूव को हम फील करते हैं, जब कोई ड्रम बीट चल रही है तो हम 4/4 को कैसे पहचान जाते हैं कि यार ये 1 आ रहा है। एवरी टाइम यू नो कि अच्छा दिस इज द 1। 1 2 3 4 5 6, मान लो 8 बीट्स का ग्रूव है। तो तुम्हें समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि 1 आ रहा है। तो आई थिंक इसी तरह आई थिंक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है मोर और लेस वही है कि हम, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि हम जो ताल को जब सोच रहे हैं तो हम इस तरह सोच रहे हैं कि यार 16 बीट्स का ग्रूव चल रहा है, राइट। धा दिन दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा चक धिगिन धा चक धा। तो मेरे ख्याल से आपका एज फार एज, शायद मैं पहले ही आंसर करने वाला हूँ कि कुछ होगा कि एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। एग्जैक्टली, दैट एक्चुअली इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुछ टिप्स, कुछ बेसिक, मतलब फर्स्टली ऐसा कुछ कि एज अगेन मैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग मोर अबाउट वोकलिस्ट टुडे, तो एज अ वोकलिस्ट, वोकल स्टूडेंट्स के लिए, आपके हम जैसे जूनियर्स के लिए, आपके फैंस के लिए, सबके लिए, whoever is listening to us today, who will be listening to us for listening this video later, तो उसमें कि कुछ छोटे एक्सरसाइजेस जो आपने भी किए या करना चाहिए, कर सकते हैं, मे बी थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज मुझे बेसिक, अगर मैं बेसिक आपको चीज बताऊं, मुझे जो मतलब मैं उनका, मैं किसी ना किसी का एग्जांपल ही दूंगा, कोई मेरा कोई ओरिजिनल थॉट नहीं है इसमें। जैसे मेरे बड़े भाई कुछ एक वर्कशॉप लेते थे और मेरी मम्मी कई बार वर्कशॉप मैंने उनको लेते हुए देखा, तो जब ना बात करते थे तो वो ठेके को ऐसे उसमें बोलते हुए इस तरह बोलते थे कि 3 ताल है अगर, तो आप बोलेंगे धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा चक्कर, है ना। तो my brother was explaining this this tal concept, and he was like ki da din din da din da da din din da chak de ke na da chak da din din da din din da din din da chak din da kit da din da din din da din din da ke chak din da kit da din din da दिन दिन दादा दिन दिन ता चक देगे ना ता किट धा दिन। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं सोच रहा था कि आप कुछ मत करिए अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने सहपाठियों के साथ, कई दिन ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ ताल पढ़ रहे हो, आप सिर्फ ताल पढ़ो इस इमोशन के साथ कि आप उसको साइक्लिकल फील कर रहे हो। सी साइक्लिकल हम विजुअलाइज तो हमेशा नहीं कर सकते ना गाते हुए,
बट जब तक कि ये सुरेश जी, पंडित सुरेश तलवलकर जी भी, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है उनका भी बहुत अच्छी उनकी सोच है, जो एक बार वो आड़ा चौताल समझा रहे थे, तो उनका भी कि ठेका जिस तरह पढ़ रहे हो ना, उससे बहुत ज्यादा समझ में आता है कि उसका उसका जो वो साइकिल जो है आपके मन में बैठ जाए, तो अगली बार से आपको, तो मैंने ये फील किया है कि जब जब आप स्टूडेंट्स के साथ, जो भी मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ, कि अगर आप उनको 2-4 बार 10 बार, हो सकता है लोगों को लगे अरे यार ये क्यों हो रहा है, हम क्यों धा तिन तिन ये हाई पिच क्यों कर रहे हैं, तो देयर हैज टू बी, बट देयर इज अ डेफिनेट लॉजिक बिहाइंड इट कि इफ यू डू दैट, you do it 10 times, you do it 20 times, you repeat it, and then you feel that they will feel the cycle more. if they don't speak it, है ना, अगर तुम नहीं बोलोगे उस तरह, तो आपको वो साइकिल फील नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा सोचेंगे कि धा तिन, अरे सर समझ नहीं आ रहा धा तिन कहाँ रहा है, क्योंकि अब क्या है कि आईफोन वगैरह में कोई धा तिन कैसे दिखाए, या तो इतना आप सोचो कि नहीं यार ये बाया है और बाया नहीं दिख रहा है, स्पेशली ऑनलाइन में क्या है कि एवरीबडी इज यूजिंग आई तबला प्रो और एंड्रॉइड, है ना, सो उसमें क्या होता है कि एप्स हैं, तो उसमें अब आप कैसे समझाओ कि यार इसमें बाया नहीं होगा, तो सडनली यहाँ से खाली शुरू हो जाती है, तो उसके बाद वापस खाली, अरे जो आई थिंक इट्स वेरी साइंटिफिक इन नेचर, जिस तरह हमारी तालें बनी है, स्पेशली अब हम 3 ताल देंगे तो उसमें खाली भरी का जो कॉन्सेप्ट है इतना यूनिक दिया हुआ है, दैट इटसेल्फ मेक्स इट साइक्लिकल. इफ यू आर, व्हाई इज देयर अ वेव, देयर वाज अ क्वेश्चन इन माय क्लास कि वेव क्यों है, कि वेव क्यों दिया हुआ है, क्यों खाली कह रहे हैं हमें से. सो अब इसका मुझे कोई फिलोसफिकल आंसर मुझे नहीं मिल रहा था, सो आई जस्ट थॉट कि अगर खाली, क्योंकि आई थिंक खंड जो है, बोलों से पहले तो आई थिंक खंड बने हैं, है ना, तालों के खंड निर्धारित हो गए थे कि भाई ये ताल है, ये खंड होगा, सो उन्होंने इसको साइक्लिकल बनाने के लिए किया होगा कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्शंस हम डिपिक्ट करते हैं कि ताल जो है ये होगी, ये साइक्लिकल नेचर होगी. अगर मैं हर उस पे ही ताली मार दूंगा हर 4 के बाद, तो फिर 3 ताल कैसे हुई, हम 16 का ग्रुप किसी भी बेचारे इंसान को कैसे फील कराएंगे कि 3 ताल है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जब हम एक्शन में दे रहे हैं, तो माइट एज वेल स्पीक इट, बिकॉज दैट्स व्हाट दे विल बी हियरिंग. सो मेरा फर्स्ट प्रोसेस, मेरे को ये लगता है कि आप ठेका ताली दीजिए और पुट एक्सप्रेशन इनटू इट. स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए इन अ फन वे, इन अ मतलब इन अ नाइस वे, उनको एनकरेज करना चाहिए कि नहीं यार इस पिच में बोलो, धा धिन दिन धा धा धिन दिन धा धा दिन दिन ता चक धिन तके ता धा त्रिक दिन धा धिन दिन धा धा दिन दिन तागे तक धिगे ना धा चक धा धिन. उनको फिर इंकरेज करना चाहिए कि यार इसमें वेरिएशन सोचो, तिन तिन तागे तक धा 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 धिन दिन धा धिन सॉरी धा धा तिन तिन तागे तक ताग तक तक तेरे के धा तक धिन धा तकिट धिन धा तकिट तिन तक धिकिट धागे ना धा तक धिकिट धा धिन धा 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 धिन धा तक धा धा तिन तिन तक तक धिकिट धागे ना धागे तक धा 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 धिन धिन धा तिन धा तिन तिन धा तक धिन. जो मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है आप उससे कहोगे अच्छा यार ये बोल है, कुछ वेरिएशन शुरू में आप लिखवा दीजिए कि अच्छा यार धा, लेकिन वो एक्सप्रेशन हमेशा आना चाहिए. और अगर तुम्हें फील नहीं हो रहा तो एक्टिंग करो, मतलब मुझे इस पे ये लगता है एक्टिंग करो, हाँ दिन you have deliberately try to feel that expression. Later on what will happen is this will become part of your sort of system. ऐसा ही मतलब मेरा ये मुझे पता नहीं जेन्युइनली फील होता है कि ये अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आर्टिस्ट मुझे ऑफ कोर्स अभी याद आया, लेजेंडरी पंडित उल्लास कशलकर जी. मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था यार, उनके गुरु, उनका मैं माफी चाहूंगा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने कितनी अच्छी मुझे बात, वो जो उनका इंटरव्यू लगा था कि उसमें उन्होंने कहा था कि उनके गुरु जो है वो गजानन बुआ जोशी से, गजानन बुआ जोशी जी आई थिंक. तो वो स्टूडेंट्स आते थे तो उनसे पेशकार पढ़वाते थे, मतलब गाने से पहले तबले के बोल पढ़वाना, उनसे कायदे के बोल पढ़वाते थे. अब कितनी अमेजिंग चीज है, कितनी अच्छी चीज है कि अब इशू क्या है, मुझे लगता है कि सीरियसली क्लासिकल म्यूजिक करने के लिए और गाना जो है समझने के लिए, अगर हम उसके हर एस्पेक्ट को समझना चाह रहे हैं, जिसमें सुर एक एस्पेक्ट है और एक ताल एक एस्पेक्ट है, लय और रिदम सब कुछ उसमें निहित है ना ताल के अंदर. सो
मुझे ऐसा लगता है कि उसको समझना है तो आपको ये ये प्रोसेस बहुत होलिस्टिक अप्रोच है जो हम सुनते हैं, जैसे ताल को बोलना, ताल को पढ़ना, कायदों को बोलना, पेशकार को बोलना, ये बहुत होलिस्टिक अप्रोच है जो मैं आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं, क्योंकि मेरे घर में था और मेरा इंटरेस्ट, फिर एक होता है ना कि इंटरेस्ट आपके अंदर जाग गया तो फिर आप फिर खुद सुनने लगते हैं। सो मुझे लगता है कि ये सबसे पहली एक अप्रोच होनी चाहिए कि आप ताल को बोलें, ताल को पढ़ें, उसकी डबल उसकी हाफ टाइम। ये हाफ टाइम का जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत यूनिक लगा था, मुझे कर्नाटक म्यूजिक में बहुत ही यूनिक लगता है। आई थिंक हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में इतना प्रिवलेंट नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये जो हाफ टाइम करने का कॉन्सेप्ट है कि ताल रख के आप हाफ टाइम करो, हाफ दिस टाइम, इज ये सो आई इंटरेस्टिंग। थिंक हम लोगों को भी, ये एज पार्ट ऑफ तालीम हम लोग को भी कराया गया है है ना, कितनी कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं, और अच्छा शायद आपको कराया, तो मैंने जनरली जो सुना, मैंने ये देखा कि आप जब ताल रख रहे हो तो वो ऊपर की लय का दर्जा बन रहा है ना, कि जनरली मैं देखता हूँ जब हम सुनते हैं तो आप कहेंगे कि दा दिन दिन दा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल होगी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 so and so forth, है ना, या डेढ़ी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 so and so forth, है ना। सो या तो आप, एक तो मुझे लगता है कि जो डेढ़ी दुगुन का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट हाँ, जो मैं हाफ टाइम की बात कर रहा था जब, तो ये मुझे रियलाइज हुआ था जब आप 7 की बीट रखते हैं, जब हम 7 की ताल रखते हैं, आप उसमें हाफ टाइम करते हैं तो कितना यूनिक सा फील होता है। I had never discovered this feeling of keeping a half time in 7, which is quite difficult. Yeah. Din, Very din, true. na, din, na, din, na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो मुझे लगता है कि जैसे आप सिमिलर प्रोसेस अगर हम जैसे 3 ताल को छोड़ दें, हम लोग 8 बीट्स में करें, आई थिंक इनिशियली, क्योंकि हाफ टाइम करो और बराबर की लय पे आ जाओ, डेढ़ी करो, दुगुन करो और उसी दर्जे से नीचे आ जाए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, और तो मैं उसकी बना ली, मैंने आड़ बना ली, लेकिन हाँ मतलब फिर बराबर करना है। उसका भी है। अगर हम उसकी डेढ़ी करना चाह रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्लैप हर 4 के बाद रख लो, लेकिन मान लीजिए कि ये 8 बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक, है ना। I hope I gave you the idea कि ये चीज पर्टिकुलरली इफ आई एम थिंकिंग अबाउट इट, तो ये आप वोकल में कैसे कर सकते हैं। आई थिंक तानों के एप्लीकेशन में, चीजों में, आई थिंक वैसे करके एप्लीकेशन में हम लोग इसको तक धीमी जो है ना, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ता तक तक धीमी ता तक सा सा रे सा रे गा सा रे गा मा रे रे गा मा रे गा मा ब गा मा ब गा मा ब द मा ब द मा ब द नी
पा पा दा पा दा नी सा 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 नी सा नी दा ब नी नी दा बा मा दा ब धा ब मा धा बा मा पा बा मा ग रे मा ग रे सा ता तक दी मी ता तक सा सा रे गा मा रे रे गा मा ब गा मा गा मा ग रे सा ता तक दी मी ता दी गे ना तो सा सा रे गा मा ब रे गा मा ब द गा मा ब गा मा ब द नी मा ब द नी सा 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 नी दा सा नी दा मा नी दा नी दा मा नी दा मा नी दा मा गा दा ब दा मा दा मा गा दा मा गा रे बा मा गा रे सा। तो उससे मुझे लगता है कि अब जैसे अगर सबका सारे गामा पर तदी गुना तब नहीं हो तो कोई बात नहीं, ता तक करें सा सारे गा रे गा मा गा, सुंदर भी लगेगा, धीरे धीरे बिल्ड करें सा सारे रे गा मा गा। ये मुश्किल हो गया, कुछ अलग हो गया। सा सारे रे गा मा बा दा नी सा। अब ता तक सा सारे गा रे गा मा मा बा दा नी दा नी सा। ता तक दिमी सा सारे गा मा रे गा मा ब गा मा ब तदी के ना तुम जोड़ दे सा सारे गा मा ब रे गा मा ब द गा। तो मुझे लगता है ना इससे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। सो मतलब मुझे लगता है इस तरह थोड़ा, क्योंकि लय और जो हमारा यहाँ पे हम ताल की बात नहीं कर रहे इतना, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ताल तो ऑफ कोर्स देन साइक्लिकल, लेकिन अगर हम यहाँ पे लय के खंड की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, तो दैट कैन रिफ्लेक्ट, डेफिनेटली रिफ्लेक्ट इन हिंदुस्तानी म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल, कर्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक प्रैक्टिसेस। सो या आई मीन पीपल कैन, आई थिंक हम लोग भी आई गॉट सो एनग्रॉस्ड। आप जैसे जैसे बोल रहे हैं, मुझे मैं भूल गया था कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, लाइव में है। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि घर पे हैं, आपसे सुन रहे हैं, आप गा रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग, यू नो, वी आर प्रैक्टिसिंग एंड गेटिंग टू नो सो मच फ्रॉम यू। एंड इट्स सो गुड टू सी। एंड जैसे आप ये सब बता रहे थे, जैसे कई बार ऐसे होता है कि वी टेंड टू लूज द बेसिक बीट, जो हमारा बेसिक, मान लीजिए अगर 3 ताल में फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक इन दैट केस probably we can use metronome just for our benefits in the beginning, then probably later on we can clap में करके, I think that can be done. नहीं, that you are absolutely right. See, मेट्रोनम जब मुझे लग रहा है जैसे अलंकार वगैरह और इवन बंदिश वगैरह आप कर रहे हैं, तो मेट्रोनम तो एक आपका साथी है सॉर्ट ऑफ। एंड आजकल तो आई थिंक इट्स सो मच इजियर। पहले हमारे घर में वो होता था, वो टिक टॉक बोल रहा, टिक टिक, मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई यूज करते थे वो। हाँ, वो पेंडुलम सा होता टिक टॉक ऐसा, एग्जैक्टली राइट, नीचे कर दो तो तेज हो जाता था अचानक से। यूज्ड टू हैव ग्रेट फन विद दैट, को थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा पता नहीं क्या है वो, एंड देन वो बहुत तेज हो जाता था। So that was metronome is great. I think मैं लय और ताल की जब हम बात करते हैं तो पंडित अजय चक्रवर्ती, I mean what a legend, what an artist, उन्होंने लय और ताल पे इतना सोचा है। तो अगर हम उनको जब देखें तो वो बहुत इनकरेज करते हैं इस चीज़ को, जो मुझे लगता है बहुत कारगर है कि अगर आप खाली बैठें तो हमेशा तबला चलाने की जरूरत नहीं है। तबला प्रो पे आप कई बार ऐसे बैठे हैं, आप मान लीजिए बंदिश को याद है, उसको ताल दे के बोलने की कोशिश करो, है ना। मुझे ऐसा लगता है उससे भी फायदा होगा। इसमें आई थिंक उसके नेक्स्ट स्टेप इज टू प्ले द तबला एंड सिंग द बंदिश। वो भी आई थिंक इज अ गुड वे टू, आई थिंक दैट्स वेरी डिफिकल्ट। हर आदमी जैसे देखो यार, कोई हो सकता है तबला नहीं सीख रहा हो या कोई बात नहीं, ताल दो एटलीस्ट। उस एक्शन से आपका ना जो बॉडी से एक आपका सॉर्ट ऑफ आपका बॉडी रिदम और आपका जो आपका दिमाग है, वो थोड़ा आपका गला जो है वो अलग होगा, डिस्टेंस होगा। यू वोंट बी डिपेंडेंट। कैसे बताऊं, तो उसमें ना अगर आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये सब लयकारी वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, बराबर की लय, डेढ़ी, दुगुन बनाना, सो एंड सो फोर्थ, और ताल दे के जब बंदिश वगैरह गाते हैं, तो उससे आपका इम्प्रोवाइजेशन सिर्फ बराबर लय में नहीं, मुझे लगता है कि शायद कई बार बीच की लय में आपको सरगम या इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। जैसे हम सितार में कितना अच्छा सुनते हैं सबसे, और कि एकदम सवाई में जा रहे हैं या
जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि 3 ताल में झपताल बन रही है, या तो वो बड़ी ही स्मूथली महसूस होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, टेंशन महसूस नहीं होती, ऐसा नहीं लगता कि अरे यार कुछ ये क्या हो रहा है, ये ओफ, ये कहाँ आएगा, ये गिरेगा कहाँ पे, ये इट्स सो स्मूथ। मतलब आप शाहिद परवेज जी को सुनता हूँ जब मैं, सो आई मीन व्हाट एन आर्टिस्ट, मतलब सो जब वो बना रहे हैं 3 ताल में झपताल या कुछ हो रही है, सो यू फील कि यार इतना स्मूथली हो रहा है वो, मतलब इट्स जस्ट हैपनिंग कि ऑन टॉप ऑफ इट जैसे वो वेव चल रही है, एंड यू नो ही इज राइडिंग दैट वेव। आई थिंक इन अ स्मॉलर सेंस हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो ताल का जो बहाव है हम लोग उसको फील करने जाए, कि अगर जो ताल, तो उसके लिए मुझे लगता है कि बंदिश, खाली बैठे कई बार बंदिश गानी चाहिए ताल के साथ, उससे भी बहुत फायदा होता है। सो या मतलब मेरा ये मानना है, इससे शायद ये कुछ देखो छोटी चीजें हैं, कई बार क्या होता है कि आई थिंक आजकल के जमाने में क्या होता है कि sometimes you put some things in such a heavy words and such a nomenclature कि वो बड़ा मुश्किल, मतलब ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड यार इसके लिए 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, 4 घंटे। ऐसा नहीं है, म्यूजिक इज और शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ इन अ फन वे ऑल्सो। इट शुड बी लाइक यार महा सीरियस तरीके से हम किसी चीज को सोच रहे हैं, तो आप इतनी टेंशन हो जाती है आपको, तो ऐसा नहीं सोचो, एंजॉय करना जरूरी है एंड टेक इट एज अ चैलेंज, कि आप बंदिश गा रहे हैं, ताल देंगे तो कैसा फील हो रहा है, अरे यार यहाँ टक रहे हैं, अंतरा नहीं गा पा रहे, हम शायद वो कर पा रहे हैं, दूसरी चीजें नहीं कर पा रहे, स्थायी हो पा रही, अंतरा नहीं हो पा रहा, तो उस पर कोशिश करनी चाहिए। सो या मतलब मेरा ऐसा ख्याल। आई थिंक ऐसा डिस्कशन वी विल, मेरे को तो मन ही नहीं हो रहा है कि बंद करूं, और इट्स फ्लो, इट जस्ट हैपन एंड इट शुडंट स्टॉप। बट एनीवे वी आर बाउंड बाय टाइम एंड एवरीथिंग, सो हम लोगों को उसको एक बाउंड्री करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू उज्जवल भैया, अगेन थैंक यू सो मच for this brilliant time, not just for me, for everybody. For I really don't know how to thank you for this. No, please, and my best wishes to you guys and Manohar. And yeah, I was coming to that. So we are organizing at Pink Lotus. We are going to have a workshop by Manohar on the 21st. So Manohar is a brilliant Vedangam artist and a person with so much knowledge about layer and everything. Have a great workshop. Best of luck to him and best of luck to you guys. आप लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, और ताल पे और रिदम पे, लय पे इतनी बातचीत हो रही है। आई थिंक मनोहर इज वन ऑफ द पर्सन जिसने नॉर्थ इंडियन कॉम्पोजिशंस को भी वो जाकिर साहब की कॉम्पोजिशंस और तबला बेयर्स की कॉम्पोजिशंस को भी वो डिकोड कर रहा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कुछ उनके क्लिप्स देखे, तो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस यार। I'm sure thank you so much. Thankful to everybody. Thank you. So in this series, जैसे आज today we had Ujjwal Nagar on with us on for the live. So we had Sangeeta Chatterjee last time who was for Kathak dance. Today we had Ujjwal Bhaiya for as a vocalist and his perception about lay and everything. In the series next, we will be going to have Dakshina Vaidyanathan on 12th. At 8 p.m. So 12th of August at 8 p.m. Dakshina Vaidyanathan, who will be talking about her perspective on lay and rhythm and lay and everything related to it as a Bharatanatyam dancer, and how things are applied in the dance form. And then the series will then we'll feature the brilliant sitar player, my very dear friend Mehtab Ali Niazi, on the 14th again at 8 p.m. And 17th, we will have Anirudh Verma, who's a prolific composer, pianist, and whatnot, human being and everything. And then again, on 19th, again at 8 p.m., we'll have Yashwant Vaishnav, who's one of the best right now in the world, one of the best tabla players. So thank you so much, Ujjwal Bhai, again. Thank you everyone who has joined us. And best of luck. I mean, you have such a talented sort of lineup coming, towards इसके बाद मेरे सेशन के बाद, so I'm looking forward to hearing them as well. So we are looking forward to your presence, to people who have joined today, to all the people who have commented. I would really like to mention a couple of names. I saw Rindana Raisya joining, Avinash Bhaiya, whom I dearly call Rindana Di. So these are brilliant vocalists who have joined, who have spared their time and made this live session a very beautiful one for all of us and everybody who joined in the process. So please take care. Stay safe, have a good time, and stay musical with a lot of lay and rhythm in your life. Thank you so much again. Thank you everybody. Thank you so much. Thank you so much. We'll take care.
Take care. Bye. You too. Bye. You too. Bye. Bye. Take care. Take care. Bye.